Hello students. So today we have discussed about the numerical based on total internal reflection. Very important topic according to CBSE. Every year one question asked from this topic. So we will discuss few questions of that total internal reflection. So first question is here. The figure shows a ray of light falling normally on the surface of a equilateral glass prism having refractive index 3/2. Placed in a water of refractive index 4/3. Will this ray suffer total internal reflection on striking the face AC? Justify your answer. Means in that question there are the two medium. One is glass, another is water. Means this prism is placed in a medium. Around it medium is water. So this ray of light coming from the water and entering in the glass. Then first of all we have to complete the ray diagram of this. If this ray fall normally, so this ray travel straight toward this face. Clear? So this angle is of 90 degree. Again this angle is of 90 degree. If it is equilateral prism, this angle is of 60 degree. So we have to draw a normal here to find the angle of incident at that face. Clear? So if it is 90, it is 60 by the angle sum property, this angle comes out to be 30 degree. Clear? And this whole angle is of 90 degree because it is a normal. So this angle of incident comes out to be 60 degree for the face AC. So I for AC comes out to be 60 degree. Clear? So now we have to find here कि will this ray get totally internally reflected or move out that face AC. So we have a condition for total internal reflection. The first condition is that light must be travel from denser to rare medium. And there is another concept. One concept is IC. This IC is known as critical angle. Clear? So one is IC. So IC, what is IC? IC के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल को हम कर सकते हैं. IC is the critical angle. तो what is critical angle? क्रिटिकल एंगल बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट की वो वैल्यू है जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री होना चाहिए. उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं. तो दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. तो इन सब की कंक्लूजन के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, दैट इज रिफ्रैक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin IC. So n is the refracted index and IC is the critical angle. So in maximum cases there is only a glass prism is given and its refracted index is given. So that refracted index with respect to air means अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता कि refracted index of glass is 3/2, इसका मतलब ये था कि ये जो refracted index है ये ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि इस ग्लास प्रिज्म के अराउंड एयर थी. लेकिन अब इस केस में वाटर है, तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट वाटर, क्योंकि लाइट यहाँ पे क्या था, वाटर, और ये क्या, ग्लास. तो जो ये 3/2 जो वैल्यू दे रखी है, दिस वैल्यू इज फॉर द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट एयर, क्योंकि जो भी किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स दिया होता है वो एयर के रिस्पेक्ट में दिया होता है या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिया होता है. But in that question light is coming from water and entering the glass. So we have to find here the refracted index means n of which glass with respect to water. So this we will write here Ng divided by Nw. So we will put the value here. Clear? So हम यहाँ पे value put करेंगे. What is the value of Ng? The Ng is given here this 4/3. Sorry, Ng glass is 3/2. ग्लास की आपको क्या दे रखी है यहाँ पे 3/2 दी हुई है. क्लियर? और जो आपकी वाटर की दे रखी है आपको, वो आपको क्या दे रखी है यहाँ पे 4/3. प्लेस इन वाटर 4/3. सो विल पुट द वैल्यू ऑफ Ng एंड Nw. तो Ng इज 4/3. Ng इज 3/2, नॉट 4/3, 3/2, and Nw is 4/3. So when we rearrange it, it comes out to be 9/8. Means this is the refracted index of glass with respect to water. For what that phase the light is coming from glass to water.
क्लियर। तो लाइट जो जा रही है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वो ग्लास से वाटर में जा रही है, मीन्स हमें निकालना है वाटर विद रिस्पेक्ट ग्लास। तो इस टर्म का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो आ जाएगा NWG मीन्स रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट ग्लास। कि लाइट कहाँ जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, पहले वाटर से कहाँ आ रही थी, ग्लास में आ रही है। तो इस फेस के ऊपर हमने देखना है कि लाइट बाहर निकलेगी, अंदर रिफ्लेक्ट होगी। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 8/9। तो जब 8/9 को हम सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 0.88। क्लियर। सो ये आपका आ गया, मीन्स इस वाटर का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो एक रिफ्रैक्टेड इंडेक्स आपने यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहला काम ये है आपका कि अगर एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा तो उसी को यूज कर लेते हैं हम, लेकिन अगर एयर के रिस्पेक्ट में नहीं है या किसी और मीडियम से लाइट जा रही है तो उसको पहले हम निकाल लेंगे। अब हमने जो नेक्स्ट रिफ्रैक्टेड इंडेक्स निकालना है उसको निकालना है इस फॉर्मूला को यूज करके। क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला है इट इज यूज्ड फॉर दिस फेस। सो हेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60। सो हेयर फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड द n। तो n आपका जो आएगा वो आएगा 1/sin 60। इस IC की जगह ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा अगर ये अलोंग द सरफेस आएगी, मतलब ये एंगल अगर कितना हो 90 डिग्री हो। तो अगर ये एंगल इससे ग्रेटर होगा तब आपकी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होती है, नहीं होगा तो नहीं होगी। लेकिन वी हैव टू कंपेयर द n, क्योंकि जब एंगल निकालते हैं तो आपको एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। वो आप टेबल से देख सकते हो, टेबल में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप n के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 60 पुट कर देना आप लोगों ने। तो जब 60 पुट करें तो 1/sin 60। तो जो sin 60 आपका होता है वो होता है √3/2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √3 /2। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे 2/1.732 तो इट्स कम्स आउट टू बी 1.2। तो जो मैंने n इस एंगल से निकाला वो 1.2 है, और n इन दोनों का जो रिलेटिव निकाला है वो आपका कितना है, दैट NWG इज 0.88। तो अब आपने इन दोनों n को कंपेयर करना, मीन्स n फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन एंड n फॉर रिफ्रैक्टेड इंडेक्स जो हमने रिलेटिव निकाला है। तो आपने NR और n ऑफ TIR को कंपेयर करना है, मीन्स n जो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की कंडीशन से आया है और जो n आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकला है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका NTIR है दैट इज ग्रेटर देन NR। अगर आपका NTIR ग्रेटर है किससे, NR से, तो यहाँ पे बेटा क्या होगी, नो TIR, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्लियर। और अगर आपका NTIR क्या हो जाए, लेस देन हो जाए किससे, NR से, तब वहां पे होगी STIR मीन्स टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। अब इसका रीजन क्या है, अगर NTIR बेटा आपका क्या है, बड़ा है, और NR आपका क्या है, छोटा है। क्लियर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है बेटा वो कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, क्योंकि अगर ये छोटा रिफ्रैक्ट इंडेक्स और इसके रिस्पेक्ट में ये बड़ा रिफ्रैक्ट इंडेक्स, तो जो लाइट है दिट इज मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर। बट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनेक्स इज डेंसर टू रेयर। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए आपकी, डेंसर से रेयर। तो इस केस में अगर आप देखते हैं कि जो NR है वो बड़ा है, मीन्स इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में जो क्या बड़ा है और TIR का छोटा है, तो अब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया। So when we will discuss 2 or 3 questions of such type, you will definitely understand the concept. Clear। तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है that is also based on the same phenomena। अब इस केस में कहता है a ray light PQ normally on the refracting surface, कि कोई रे है जो इस AB पे नॉर्मली फॉल करती है, is refracted in the prism BAC। वो BAC के अंदर रिफ्रैक्ट होगी, अंदर आएगी, मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो दे रखा है बेटा, इसका मटेरियल का जो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है दैट n इज 1.5। अब इसका मतलब बेटा ये इस प्रिज्म को किसी और मीडियम में नहीं रखा हुआ, तो जो ये दे रखा है, दे रखा है n ग्लास विद रिस्पेक्ट एयर, वो आपको 1.5 दे रखा है। मीन्स अब आपको रिलेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके अराउंड जो है वो एयर है, तो एयर का ऑलरेडी आपको 1.5 दे दिया। कह रहा विल दिस रे सफर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन और नॉट, जस्टिफाई आंसर। की कह रहा है कि या ये रे टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी, आपने अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। कहता जो ये एंगल है ये 45 का है। क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, इस रे को पहले तो आगे की तरफ खींचना है, यहाँ से यू विल एक्सटेंड दिस रे, इस रे को यहाँ पे खींचा हमने,
यहाँ पे खींचने के बाद इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, लाइक दिस। क्लियर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है। ये कितना है, 45 है। तो आपको पता है ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो अगर ये 45 है तो बेटा आपका जो ये पूरा एंगल है, दिस फुल एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। क्लियर, तो ये कितना बचेगा आपका, 45 बचेगा। तो अब आपने यहाँ पे आई सी कंडीशन लिख लेनी है, तो उसको लिख लें 45। तो एक एन आपके पास ऑलरेडी है, बिकॉज इन दैट केस दिस प्रिज्म इज प्लेस इन अ एयर। ये ऑलरेडी एयर में रखा हुआ था, तो इसके अंदर रिलेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो अपने पास एंगल कितना 45 है। तो अब हमने क्या करना है, एक एन जो ऑलरेडी है जिसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और एक एन हम TIR से निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो वी हैव अ कंडीशन दैट एन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। सो व्हाट इज द एंगल हेयर, दिस एंगल इज 45। सो वी विल पुट हेयर वैल्यू 1 अपॉन साइन 45। तो वी ऑल नो दैट साइन 45 होता है आपका 1 अपॉन √2। क्लियर, और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका √2। तो जो n आ गया वो आ गया √2। तो जो n अगर √2 है तो वी ऑल नो दैट कि अगर n की वैल्यू √2 है तो ये आपकी होती है 1.414। तो हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। किस किस को कंपेयर करना है, जो n हमने किससे निकाला है, n ऑफ TIR, n ऑफ TIR, n ऑफ R। n मतलब रिलेटिव। अब यहाँ पे एयर है तो एयर के सिर्फ में 1.5 है। तो जब मैं यहां से ध्यान से देखता हूं कि जो TIR है वो 1.4 है। क्लियर, TIR क्या आपका 1.4 है, और जो n है आपका वो आपका क्या है, दैट इज 1.5। तो अगर मैं यहां पे कंडीशन देखता हूं तो यहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनकी दोनों की वैल्यू लिखेंगे। जो TIR से आया है, दिस इज NTIR जो हमने फाइंड किया है, ये आपका है 1.414, और जो देखा 1.5। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, वी हैव टू पुट द साइन की विच वन इज ग्रेटर। सो यहाँ से जो NR है वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दैट इज ग्रेटर। तो अगर आपका NR ग्रेटर है, अगर आपका NR ग्रेटर है तो यहाँ पे आएगा यस। यस जो वहाँ पे क्या होगी, TIR होगी, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। इसका मतलब है जो ये लाइट यहाँ पे आई है ये बाहर ना जाके इट रिफ्लेक्ट बैक, ये अंदर आ जाएगी। क्लियर, किस एंगल से आई है वो आप एंगल फाइंड कर सकते हो यहाँ पे। अब कैसे निकलेगा आपको अच्छे से पता है कि अगर ये 45 है और ये नॉर्मल है, अगर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है तो दिस एंगल इज आल्सो 45। सो इन दैट वे दीज टू क्वेश्चन वी हैव डिस्कस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वी हैव डिस्कस, वन मोर क्वेश्चन। फ्रॉम दैट क्वेश्चन यू डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि हाउ टू सोल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं हम। 3 ray 1 to 3 of different color fall normally on the side of a isosceles right angle prism as shown in the figure। कि यहाँ पे 3 रे हैं 1 2 3 जो इस प्रिज्म पे फॉल कर रही हैं, और सभी रे के लिए रिफ्रैक्ट इंडेक्स दे रखा है कि जो 1 2 3 के लिए है यहाँ पे 1.39 है इसके लिए रिफ्रैक्ट इंडेक्स, इसके लिए 1.47 है, और यहाँ पे है 1.52। क्लियर, अब यहाँ पे जो दे रखा है मतलब जो n किसका, पहली का। अब जो n है ना ये बेटा, ये फर्स्ट रे का एक्चुअल में दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्ट इंडेक्स दिया, वो कितना 3.9। किसके रिस्पेक्ट में है, ये आपका जो रिस्पेक्ट में है ये एयर में है, क्योंकि इसके अराउंड एयर है। अगर अदर मीडियम होता तो हमें फाइंड करना, तो इसको NR1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे NR2 जो कितना 1.47, और फिर लिखेंगे NR3 दैट इज 1.52। तो हम इनका सबका रिफ्रैक्ट इंडेक्स पता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो इस फेस पे होगा उस फेस से हम क्या निकाल लेंगे, TIR की कंडीशन से n निकाल लेंगे, दोनों n को हम कंपेयर करेंगे। क्लियर, तो देखते हैं सबसे पहले इसको। तो सबसे पहले इस रे को हमने खींचा, ये सीधी जाएगी, फॉल नॉर्मली है, तो हमने यहाँ पे पहले क्या ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये कर दिया अभी नॉर्मल ड्रॉ। तो इफ इट इज अ नॉर्मल, सो दिस एंगल यू ऑल नो दैट इज ऑफ 90 डिग्री, देन दिस इज ऑफ 45 एंड इट अगेन कम्स आउट टू बी 45, एंड दिस फुल एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये कितना आएगा आपका, दिस कम्स आउट टू बी 45। मीन्स इस फर्स्ट रे के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो भी 45 है, और जो ये वाली रे है ये भी ऐसे ही फॉल कर रही है, तो इसके ऊपर भी क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इसके लिए भी जो एंगल सिमिलरली कितना आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये कितना 45 होगा, ये पूरा कितना है 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो जो तीनों के तीनों एंगल होंगे वो आपके कितने डिग्री के होंगे, यहाँ पे फॉल करवाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये एंगल फिर से 90 डिग्री है, दिस इज 90, दिस इज 45, दिस इज अगेन 45 एंड दिस इज अगेन 45, ये भी कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा।
तो हमें यहां से पता लगा कि रे 1 2 3 तीनों के लिए मीन्स रे 1, रे 2 और रे 3 है जो, इन तीनों के लिए जो आपका आईसी है या जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कितना है 45 है। क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, इस एंगल से टी आई आर कंडीशन से एन निकाल लेंगे। तो क्या कंडीशन है टी आई आर की, हमें अच्छे से पता है कि जो आपका एन होता है दैट इज 1 साइन आई सी होता है टी आई आर से, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की कंडीशन। तो एन निकाल लेंगे यहां से, तो लिखेंगे 1 साइन 45। क्लियर। अपने को पता है दैट इज 1/√2, तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो बन जाएगा √2। तो जो पहली रे है, जो क्या है पहली रे, उसके लिए भी कितना आया एन ऑफ फर्स्ट रे, कौन सा एन, टी आई आर वाला। तो टी आई आर वाला जो एन है वो आ गया अपना 1.41। तो सबके एंगल सेम है, तो इसका मतलब सेकंड रे के लिए भी जो टी आई आर का होगा वो भी कितना 1.414, और जो थर्ड के लिए होगा अपना दैट इज टी आई आर वो भी कितना होगा 1.41। अब हमने आगे करना है तीनों के रिफ्रैक्टेड इंडेक्स जो रिलेटिव हैं और टी आई आर को कंपेयर करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे हम NR1 मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ फर्स्ट रे दैट इज 1.39। क्लियर। एंड N4 फर्स्ट रे जो किससे निकला है टी आई आर से निकला है वो कितना है आपका दैट इज 1.414। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो अपने को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो टी आई आर के लिए एन है, N1 रे है जो उसके लिए टी आई आर वाला जो है वो ग्रेटर है किससे, NR1 से। सिमिलरली दूसरे का लिखेंगे तो NR2 वो कितना है अपना दैट इज 1.47, और जो N2 टी आई आर से आया है वो कितना है अपना भाई, वो आपका है 1.414। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो जो आपका NR2 है वो ग्रेटर है किससे टी आई आर वाले से, मीन्स N ऑफ टी आई आर 2 रे के लिए। सिमिलरली जब हम तीसरा निकालेंगे NR3 मीन्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो थर्ड रे, वो कितना दे रखा है आपको 1.52 दिया हुआ है। इफ इट इज 1.52 एंड द वैल्यू ऑफ N3 दैट इज टी आई आर वो कितना है आपका दैट इज 1.414। दोनों को कंपेयर करेंगे तो NR3 इज ग्रेटर देन NTIR। तो वही अपन ने कंडीशन बताई थी आप लोगों को। क्लियर। कंडीशन क्या थी, हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं किस किस के लिए स्मॉल है किस किस के लिए लार्ज है, उसको हम चेक करेंगे अभी। तो वंस यू विल रिमाइंड द कंडीशन कि विच रे गेट टोटल इंटर रिफ्लेक्टेड एंड विच रे पास विदाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब हम ध्यान से देखते हैं कि इसका जो पहले का जो टी आई आर है वो ग्रेटर है। क्लियर। और मीडियम का क्या है रिलेटिव रहने में कम है। तो इसका मतलब जो लाइट है वो कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। लाइट कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर में। तो यहाँ से अपने को क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसके लिए आंसर क्या आएगा, नो आएगा। क्यों नो आएगा, क्योंकि टी आई आर इज ग्रेटर। टी आई आर छोटा होना चाहिए किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब NTIR। और इन दोनों केस में हम देखते हैं दूसरे और तीसरे केस में, इस केस में और इस केस में आंसर क्या आएगा, यस आएगा। क्यों आएगा यस, कि यहाँ पे टी आई आर होगा। क्यों होगा टी आई आर टोटल, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मीडियम का है ज़्यादा और इस एंगल के लिए जो लाइट ने टी आई आर की कंडीशन है उसका है कम। तो लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर। तो कंडीशन क्या टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की, लाइट हैव टू ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिज्म बट द कंसेप्ट इज डिफरेंट इन दैट क्वेश्चन। है वही है, थोड़ा अलग है। अब इसके अंदर अपने को एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है। तो क्या है यहाँ पे, ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एज शोन इन द फिगर इफ द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3। मीन्स इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स है वो आपका है √3। अब इस √3 का मतलब यहाँ पे बेटा ये है कि इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में √3। मीन्स अब आपको यहाँ पे रिलेटिव निकालने की जरूरत नहीं, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका। क्लियर। फाइंड आउट द एंगल ऑफ इमरजेंस की जो ये रे ए बी फेस पे आएगी तो इसका एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा। तो बेटा आपको पता है ये रे सीधा फॉल करेगी लाइक दिस। ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा, वी ड्रॉ अ नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल हो गया आपका। तो अगेन वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट।
कि यहाँ पे किस एंगल से लाइट फॉल करी है, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि अगर ये आइसोसेल्स है तो यहाँ पे 45 होगा, तो ये एंगल भी कितना है 45 है। क्लियर, ये 45 है तो आपको पता है ये कितना होगा, दिस इज 90 डिग्री, तो ये 90, तो ये भी क्या है 90 डिग्री है, तो ये कितना आएगा 45 आएगा। ये पूरा कितना है 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से जो IC आपका आएगा वो कितना आएगा 40 डिग्री आ जाएगा भाई, ठीक है। जो IC हो गया वो 45 हो गया आपका। अब आपने क्या करना है कि ये रे इससे बाहर निकल रही है, उसने कह दिया कि ये रे इससे बाहर निकल रही है, तो आपको पता है कि जब लाइट रे बाहर आएगी तो वो अपने पाथ से डेविएट होगी, डेंसर से रे आ जाए तो बेंड अवे फ्रॉम। आपने ये एंगल E निकालना है, लेकिन कंडीशन वही लगेगी पहले वाली है। क्लियर, कंडीशन कौन सी लगेगी आपको, अब यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, क्या दे रखा है आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, ये था ग्लास टू एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट एयर, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही थी, एयर से ग्लास में आ रही थी। तो इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी लाइट है वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है ग्लास से एयर में। लाइट कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर में, और यहाँ पे क्या आ रही थी, एयर से ग्लास में आ रही थी। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, किसी मीडियम का भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होता है वो एयर के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जहां पर हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है, उस पॉइंट के ऊपर जो लाइट है वो ग्लास से एयर में आ रही है। तो अब अपने को यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसका, एयर का विद रिस्पेक्ट ग्लास। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर मुझे NGA पता है दैट इज √3, तो इफ यू वांट टू फाइंड NAG मींस एयर विद रिस्पेक्ट ग्लास, तो हमें पता है इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो इसका रेसिप्रोकल है 1/√3, दैट इज अ 10th क्लास बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर आपको एक मीडियम का पता है किसी के रिस्पेक्ट में, अगर उसका उल्टा करना है तो हम रेसिप्रोकल करते हैं। मतलब एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में पता है, वाटर का एयर में निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल। अब मेरे को पता लग गया कि इस पॉइंट के ऊपर जो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स है ना वो आपका कितना है 1/√3 है। अब यहाँ पे लगा देंगे स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ आपको पता क्या कहता है, दैट इज sin I डिवाइड बाय sin R। क्लियर, अब यहाँ पे sin I कितना है 45 है, और sin R हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस जिसको E मानना हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 1/√3 इज इक्वल टू sin 45 डिवाइड बाय sin E। अब मेरे को sin E चाहिए, तो sin E को उठा के उधर ले जाएंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अभी हम sin 45 की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो sin 45 होता है वो होता है 1/√2। क्लियर, इधर आ गया आपका sin E। तो हमने क्या है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है इसकी। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो आपको आ जाएगा √2 sin E इज इक्वल टू √3। क्लियर, उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin E इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाय √2 मीन्स 1.732 डिवाइड बाय 1.414। इसको सोल्व करने के बाद आपका यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा है, तो E जो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स दिस वैल्यू जो यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये 1.4 है 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आप यहाँ तक इसको निकाल के छोड़ सकते हो। अगर आपको टेबल में से एंगल निकालना आता है तो आप टेबल को यूज करके इस एंगल को फाइंड कर सकते हो। क्लियर, तो ये जो क्वेश्चन था हमने जस्ट इमेज अपनी तरफ से मान लिया था कि ये 45 है, कि अगर ये एंगल हम 60 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये 60 है। अब फिर से इसको हम सोल्व करेंगे, अगर ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा बेटा। तो अगर ये 30 है तो ये पूरा 90, 30, 120, तो ये जो एंगल आएगा आपका यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये एंगल निकालना है, ये आपका 60 था तो ये 30 हो जाएगा, दिस इज 30। क्लियर, तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये जो पूरा एंगल है ये 60 हो जाएगा। तो ये 60 है तो ये 45 की जगह हमारा 30 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 30 लिखेंगे 30 होता है 1/2। क्लियर, 30 आपका आ जाएगा। यहाँ पे √2 की जगह आ जाना था, यहाँ पे 1/√3 इज इक्वल टू 1/2 साइन E। तो इसको रीअरेंज करता था साइन E इज इक्वल टू 2 साइन E इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर, तो साइन E हमने निकालना था √3/2। तो अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते थे कि जो साइन की वैल्यू होती है 1/√3 होती है साइन 60 पे। तो दोनों साइड से साइन को छोड़ देना, तो E की वैल्यू बनी थी 60। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इफ यू डिडंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू यू हैव टू राइट इन द इनवर्स फॉर्म। तो किस में लिख दोगे आप, इनवर्स की फॉर्म में लिख दोगे ऐसे। तो दिस इज आल्सो करेक्ट इफ यू राइट इन द इनवर्स फॉर्म। तो इस वीडियो के अंदर हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे TIR बेस्ड।
सो इन न्यूमेरिकल्स को आपने, आपके पास जो भी बुक है इस टाइप के न्यूमेरिकल को, उसमें से आपने देखना है। देखने के बाद उनको सोल्व करना है। सो अगर आपको किसी में कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट आया होगा तो उसको आप लोगों ने मेरे को मैसेज फॉरवर्ड करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो डाउटफुल न्यूमेरिकल को हम डिस्कस कर सकें। सो दिस इज over in this video, so we will meet with next video next time.